सर आपण साफ करूया सेशन. हो हो चालेल मॅडम. A very good morning to all of you. Today for first live session we have with us a respected Dr. Dayananda Gogle sir. Sir, I welcome you on behalf of UGC HRDC Nagpur to this refresher course in life science. Friend sir is currently working as a head Department of Botany and Molecular Biology and Genetic Engineering, RTM Nagpur University Nagpur. He is MSc PhD in botany and having specialization in plant physiology. His areas of interest are plant physiology, phytochemistry, leaf protein, stress physiology, biodiesel, industrial fermentation technology, and neuroplant physiology. As far as teaching and research experience is concerned, he has total 20 years of teaching and research experience. He has published more than 25 research papers in national and international journals. Academic achievements include sanctioned one Indian patent for process of manufacturing biodiesel from green biomass in 2011. He has visited Taiwan and delivered a guest lecture in the year 2016. He has written 2 books on understanding cancer and phytochemicals. Under his able guidance, till date, 10 PhD and 5 MPhil students awarded their degrees, and 6 students are currently working under him. He has established an angel herbal product company. He is a recipient of Best Student Award and member of editorial board of International Journal of Bionano Frontier, Mumbai. With this brief introduction, I once again welcome you, sir. Friend, sir will deliver a lecture or a talk on the topic brain memory proteins. Sir, please. Okay, thank you, ma'am. Good morning to all. Good morning, sir. Today I आवाज am. थोडा कमी येतो आहे. आवाज कमी येतोय मॅडम? हा, थोडं जवळ किंवा लाऊड पिच मध्ये. हा, आता येत आहे आवाज? हो सर. हॅलो हॅलो. येस सर. येत आहे. It's okay. It's okay. Okay. Today I am going to give the information related to the brain memory protein. Dear friends, this topic is divided into 6 parts. First, what is meant by brain. Second, type of memory. Third, mechanism of memory formation. Protein involved in memory formation. Syndrome, nutrition of brain. At first, that is regarding the what is by brain, but it is physiologically and physically. It is that is the definition is like this. Brain is nothing but that is it is a simply collection of the nerve cells, or brain is nothing but it is a organ which collects the information, act on that information, and those are useful to stored for future use. That is called as memory. Here, the comparison between the computer and brain, the 2 point is very important here. The processing in computer, that is the processing is sequential, and in a brain that is a parallel. Here sequential and parallel means in the brain the all process is going parallelly, but in computer that is one by one. Another very important difference between that is computer and brain, that is a material used for memory. Here material in computer used that is inorganic, that is called as silicon, and in that is brain that is organic, that is the protein or carbon. Another here very important point here, which region of the brain involved in the formation of the new memory? Particularly 2 regions of the brain, 2 parts of the brain which is involved in the memory formation. Number 1, that is called as amygdala. It is a very important part in the
hypothalamus, or that is called as hippocampus region, near the hippocampus. It is involved in the modulation of the memory, consolidation, and it is a very important and interesting thing here. During the consolidation period, memory can be modulated. And another very important point here, the greater the emotional arousal following a learning event enhances the, that is a person retention of that event. Means is a greater the better, that is a greater the emotion, better the memory power. Means here amygdala create the emotions, and emotion related to the memory, which short-term memory convert into long-term memory. For example, you know that those information related to the emotion, they do not need to repeat it. It is directly converted into long-term memory. और आप लोगों को अगर उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया जाए, तो जो मेमोरी हमारे इमोशन के रिलेटेड होती है, उसको हम भूलना चाहते हैं फिर भी भूल नहीं पाते, और जो मेमोरी इमोशन से रिलेटेड नहीं होती है, हम याद करना चाहते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ते, फिर भी याद नहीं होता है। इसका मतलब इमोशन से जुड़ी हुई जो मेमोरी है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Another, that is a part that is called as hippocampus. Hippocampus, it is a very important for to write the memory and recall the memory. Means here, this provides us that the hippocampus play important role in, that is write the memory and that is recall the memory. Sometimes what happens, the hippocampus part is damaged, difficult to formation of new memory and difficult to recall the memory also. And so it is a very important, they like the hippocampus work like the CD writer, write the CD and read the CD. Similar way here, hippocampus play important role in write the memory and recall the memory. And when it is damaged, it is difficult for access. This is a diagram, shows the position of the amygdala. Here, the amygdala and another that is called as hippocampus. Amygdala and hippocampus both are essential for to create the memory and write the memory and recall the memory. Another part, that is where memory is stored. Memory is stored in neuron synapses. What is meant by synapses? Synapses is nothing but a joint of two nerve cells. That joint of two nerve cells is called as synapses, or junction of the two neuron cell is called as synapses. And here within the junction, it is a provide a space that is called as a bag-like or sac-like structure, which is useful for store the memory in the form of protein. Synapsin protein, it is also very important to, that is helpful for, that is create the more synapses or for the joining of the one, that is part of the nerve cell to other part of the nerve cell. Here, very important part, one nerve cells directly or direct attached to the other 1,000 nerve cells. It is a very important part. What is that is the meaning here? Why the nerve cell, there is a need to connect to other, that is 1,000 different neurons. That is one reason is here more the connection, more the synapses, or more the connection, more better the memory. For example, you read one time, at that time what happens? That is one connection is created, and within the one connection memory is stored. You repeat 2 times, 3 times, 4 times, 5 times, that is the connection is increases continuously. More the connection, more the memory protein, and more the memory protein, that is a better the memory. It is a very interesting thing. And so, that is earlier in childhood, you know, our teachers, they repeated 1, 2, 3, 4 or ABCD 1,000 times, and it creates the number of more than 1,000, that is a connection for the same memory. So that memory do not able to erasable, or it is easily accessible. Here, this synapses junction between the neurons
provide the mechanism which record and store the memory. Here, communication network in your brain is multi-trillion of collections capable of performing 20 million per second. This is a diagram showing that is how the connections here, that is the synapses develop. That is one by one. At first, that is smaller. Here, later on, this is a large image, and this is also large image. This is also shows the synapses, how synapses synthesize the synapsin protein and other the protein related to the memory. This is also that is same. This is a diagrammatic diagram shows the how the dopamine, that is the neurotransmitter, helpful for the creation of protein related to the memory. Another very important parts, that is who power the memory. At first you see the which part involved in the memory formation, and here that is who power the message. Neurons, that is power the message. How? With the help of electrical transmission. Means each single neuron able to provide 10th part of volt electric energy. And this electric energy able to, that is measurable with electroencephalogram. Here is very interesting things. That is one neuron create the 10th part of the volt. Means our brain having a millions and trillions, that is neurons, and he creates the number of voltage of energy. अगर उसका हम कैलकुलेशन किया जाए तो अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और किसी ने सोचा कि हमारे अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है उस इलेक्ट्रिसिटी पे अगर बल्ब जलाना है तो 40 वैट का बल्ब आराम से जल सकता है, इतने इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो सकती है. मींस हियर मोर द बायोइलेक्ट्रिक करंट बेटर द मेमोरी. मींस इलेक्ट्रिक करंट or memory is which is also related to the electric current, and that current is created through the nerve cells biological process, so it is called as bioelectric current. And in this way this bioelectric current may be able to measure by encephalogram. Axon is a single insulated fiber that sends the bioelectric current out to the cell, that is the terminals, which can be reversal, that is inches or feet away. Means here very important process इलेक्ट्रिक करंट. आप लोगों ने सुना होगा हमारे टीचर पहले बोलते थे लेट करंट, बल्ब जला क्या, या ऐसा जो बोलते थे उसका रीजन ये है कि हमारी मेमोरी और इलेक्ट्रिसिटी का कोई ना कोई रिलेशन है, और ये रिलेशन ऐसा है बेटर द मोर द इलेक्ट्रिसिटी बेटर द मेमोरी पावर. This is a diagrammatic, that is bioelectrical impulses flow. Another very important question here, who create the message? Neurotransmitter create the message. Within the cell body of neuron, many different type of the neurotransmitters are manufactured and shipped out end terminal of the axon, packed in vesicle and cross over the synapses. Here very important neurotransmitters, that is the dopamine, norepinephrine, serotonin, acetylcholine. This is the dopamine, norepinephrine, serotonin, acetylcholine. These are the neurotransmitters helpful to create the message. Who receives the message? Receptor receives the message. Here receptor is essentially a geometric lock designed to the accept only right key. The neurotransmitter whose molecular shape and polarity are, that is a precise fit. Means here neurotransmitter receives the information. This is the first part, that is
related to the only what type of the memory, type of memory here. The number second part, types of memory, short-term memory and long-term memory. In first part, which part of the brain involved in the memory formation we are seeing, and here in second part, type of memory, short-term memory and long-term memory. What is meant by short-term memory? It refers to transient memory that lasts lasts from minutes to hours, and it is easily vulnerable to disruption. Those memory only able to store for only few seconds, few minutes, and few hours, and later on it is lost that memory. That memory is called as short-term memory. Most of the people can able to hold 5 to 9 atoms in the short-term memory. Some try to, that is, hold the more memory than the 9 to 12 atom or more than 9 atoms. What happens? They will often end up forgetting the middle atoms. अगर हम कभी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाते वक्त आप लोगों को घर में बताया जाता है कि ये लाना है, सब्जी लाना है, टमाटर लाना है, ऐसे हम अगर नाम देखते हैं तो हम हर दिन के पहचान के नाम होने की वजह से हमें लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं, याद तो होगा। मगर 10 से ज्यादा 9 से ज्यादा आइटम होते हैं तो मार्केट में जाने के बाद 1 2 3 तो नाम हम भूल ही जाते हैं। इसका मतलब यू एबल टू होल्ड ओनली 5 to 9 आइटम in that is the temporary memory. What is the mechanism in that is the formation of short-term memory? In short-term memory formation, only simple here. There is no need of that is to create the synthesize the protein. There is no need to create the new connections. Only simple. It is the that is the develop a electrical loop, simple electrical loop. And within the electrical loop, the information is stored. Electrical loop like the bubbles. आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे बबल्स क्रिएट करते हैं वो राउंड होते हैं और अंदर से हलो होते हैं, एम्प्टी होते हैं. Similar here, electric loop is developed, and within the electrical loop, the short-term memory or short that is memory is stored. What happens? This short-term memory then is stored out something to a electric tape loop, and connections are not modified here. So what happens when complete loop is made? Three things can happen. Number one, the formation can be repeatedly, silently or loudly, which will provide auditory cue. Number two, the information goes to long-term memory, and number three, the information will be lost. Means here, short-term memory, those things are stored, or those memory stored in short-term memory, this memory may be lost when it is not able to repeat, and when you are able to repeat it 1 to 3 times, it is goes to long-term memory. Means repetition is essential for short-term memory converted to long-term memory. What is meant by long-term memory? The long-term memory can be recalled day, month, year. Often it is stored is called long-term memory. It requires new protein synthesis, new synaptic connection, morphological changes in the synapses, and increase in the number of connections or decrease in the number of terminals. Means here, for the formation of long-term memory, required protein synthesis, new connections, and that is a synapses increases, changes in the that is a morphological changes in the synapses also increases here. Mechanism of long-term memory. In during the long-term memory, at the terminal end of the long, narrow neuron axon, their signal is transferred by molecules called neurotransmitter. Because neurotransmitter only able to transfer from one cell to another cell. So there is the membrane.
So here, dopamine, glutamate, and serotonin are the neurotransmitter which are secreted from the neuron terminals and pass across the synapses and activate membrane receptor in the target cells. Here, very important parts. Irkin Candle in 1960, that is a work on, that is a foot, that is a long snail, that is called as Aplysia, and own two and own 2000 in 2000 Nobel Prize in Physiology and Medicine. The Candle found that snail learn to withdraw its gills in response to just stimulus to the tail. It is a simple experiment. इरिकिन कैंडल ने क्या किया था, एक सी स्नेल लिया था और सी स्नेल के टेल को टच करते ही वो उनके गिल्स जो है विड्रॉ कर लेता है, और गिल्स विड्रॉ कर लेता है तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो गिल्स ओपन कर देता है, फिर टच करता है। तो एक या दो बार टच करने के बाद उन्होंने फिर उसका ब्रेन का एनालिसिस किया, तो ब्रेन में जो प्रोटीन तैयार होना चाहिए, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीआरईबी प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन तैयार नहीं हुआ, न्यू कनेक्शन तैयार नहीं हुए। फिर वही प्रोसेस उसने 9 से 10 बार उसको टच किया और उसके बाद उसका ब्रेन का डिसेक्शन किया, तो पता चला कि सीआरईबी प्रोटीन तैयार हुआ है। इसका मतलब कि रिपीटेशन इज एसेंशियल फॉर दैट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। Here, generally, to convert short-term memory to long-term memory require approximately spaced repetition, not only the repetition but spaced repetition. For example, अगर हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी परमानेंट मेमोरी कन्वर्ट करना है, अगर एक आधी चीज है, एक आधी बुक है, एक आधी इंफॉर्मेशन हम अगर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद 24 घंटे के बीच में एक बार अगर दोबारा हम पढ़ते हैं या याद करते हैं, फिर बाद में हफ्ते में एक बार और फिर बाद में मंथ के एंड में एक बार, यानी 3 बार रिपीटेशन चाहिए। पहले 24 घंटे के बीच, दूसरा एक हफ्ते के बीच और तीसरा एक मंथ के बीच। ऐसे 3 रिपीटेशन, स्पेसिफिक रिपीटेशन अगर हम पढ़ते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और ये मेमोरी हम कभी भूल नहीं सकते। बट इट रिक्वायर रिपीटेशन बट स्पेस्ड, that is repetition. Here, as a result of memory, those with more experience have a large hippocampus than the inexperienced. Means, again, very interesting things here. You easily identified that is a knowledgeable person and those do not having a much more, that is knowledge also. How? On the basis of that is size of hippocampus. जिस इंसान ने ज्यादा पढ़ा है और ज्यादा पढ़ा है तो उसके ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन तैयार होगा, प्रोटीन ज्यादा तैयार होगा तो उसको जगह ज्यादा लगेगी कि तो साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो हिप्पोकैम्पस का साइज बड़ा, यानी वो ज्यादा होशियार है, ज्यादा मेमोरी उसके ब्रेन में स्टोर है। और जिसका हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा होता है, इसका मतलब उसके ब्रेन में मेमोरी ज्यादा नहीं है, प्रोटीन ज्यादा नहीं है, यानी मेमोरी ज्यादा नहीं है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कंक्लूजन हियर, दैट इज द एक्सपीरियंस have large hippocampus than inexperienced man. Several, that is model systems, have shown that synaptic transmission is modified as a result of changing the number of phosphate group to attach to the protein in the synaptic membrane. Again, very important thing. Those information collected from the different 5 sense organ, that information may be converted into long-term memory. How? By the process called as phosphorylation process. Due to the phosphorylation, when the phosphorus molecule is attached, the memory is stored, phosphorus molecule is detached, in memory is erased. Means here,
After the phosphorylation, the memory is stored, short-term memory converted into long-term memory. And what happens? This phosphorylation has some problems. Number one, it is not permanent because phosphate group get removed and thus memory erased. Second thing, protein molecules are also not permanent and have to be continuously replaced. दो चीज हो सकती है आफ्टर मेमोरी फॉर्मेशन, एक आधी लेक्चर हम सुनते हैं तो फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, यानी मेमोरी स्टोर हो जाती है, और फॉस्फोरिलेशन के बाद अगर उसको हम रिपीटेशन नहीं किया तो डीफॉस्फोरिलेशन हो सकता है और मेमोरी इरेज हो सकती है. या those information is not that is important, that protein also that is replaced by in other that is a new memory also. For example, सुबह हम जैसे ही उठते हैं तो हमारे आंखें खुलती है, आंखें खुलने के बाद जो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है, हमारे 5 सेंस ऑर्गन काम करना स्टार्ट करते हैं और अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन सुबह से लेकर सोने तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरा रिकॉर्ड कर लेते हैं और इतना सारा ह्यूज डाटा तैयार होता है तो ब्रेन को लगता है कि इतना सारा डाटा का क्या करें. Those are important convert into long-term memory, and those are not important, it may be destroyed and it may be replaced, or it may be that the dephosphorylation is occurs and that protein is available for new memory formation. अभी दूसरा सवाल उसमें ऐसा आता है कि फिर ब्रेन कैसा डिसाइड करता है कि ये मेमोरी जो है इंपॉर्टेंट है. 24 घंटे में जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें से यही इंपॉर्टेंट कैसा है. एक तो हम रिपीट करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार दिन में, तो उसको समझ में आता है कि रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है. दूसरी बात, डिफरेंट होती है कोई चीज तो उन्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट टर्म डायरेक्टली वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है. कोई यूनिक चीज होती है तो भी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है. डिफरेंट, यूनिक, कलरफुल, इंटरेस्टिंग, ऐसी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं विदाउट रिपीटेशन. आपने आप रिपीटेशन किया भी नहीं तो एक तो हमें जो इंपॉर्टेंट है उसको रिपीटेशन करना पड़ता है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो ब्रेन डिसाइड करता है ये डिफरेंट है यानी इंपॉर्टेंट होगा, यूनिक है यानी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर वो और सोचता है ये कलरफुल है यानी इंपॉर्टेंट होगा, या फिर इंटरेस्टिंग है तो यानी ये इंपॉर्टेंट होगा. तो इतने चीजें वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और बाकी की सभी डीफॉस्फोरिलेशन हो जाता है, एंड दैट प्रोटीन इज अवेलेबल फॉर न्यू मेमोरी फॉर्मेशन. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट phenomenon occurs in our brain, particularly in the that is called as hippocampus region. Which protein is involved in the memory formation? It is a very interesting thing. That protein is called as cyclic AMP response element binding protein. This involved in the transcription of other protein also. But here, those cells with more CREB protein present, they are likely to store more memory. Again, very interesting things here. जिसके ब्रेन में सीआरबी प्रोटीन ज्यादा है मीन्स उसके ब्रेन में मेमोरी ज्यादा है. By using the mice, the researcher implanted CREB protein into virus and then introduced a virus into a region of the brain critical to emotional memories. What happens? They then tested to see if the mice could recall a specific case visited before. कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था कि सीआरबी प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट क्यों है. तो उन्होंने एक माइस लिया और माइस को एक केज में रखा. केज में रखने के बाद उसको जो पानी पीने के लिए केज में रखा, एक जगह पे उसको कुछ खाने के लिए चीजें रखी और उसको आराम करने के लिए कुछ चीजें रखी. तो जो जैसा ही डोर खोल जाता केज का, माइस अंदर चला जाता है. फिर कुछ जो खाने की चीजें खाने के बाद, जो पानी है पीने के बाद वो आराम करता. ऐसे 1 महीना रखने के बाद उसको वो केज का डोर कहां से है
केज में कहाँ पानी रहता है, केज में कहाँ पे खाना रखा है, केज में कहाँ पे आराम करना है, ये चीजें मेमोराइज होती है। और फिर ये माइस के ब्रेन में से सीआरबी प्रोटीन जो है वो निकाल लिया जाता है और वायरस के थ्रू दूसरे माइस, न्यू माइस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज होती है, वो दो माउस है, एक ओल्ड है एक न्यू है, जिसके जो ओल्ड है उसके ब्रेन में से सीआरबी प्रोटीन निकाला है और जो यंग है उसमें से या न्यू है उसके ब्रेन में डाला है। वो दोनों को जब केज के सामने लाया जाता है, ओल्ड माइस जो है दे डू नॉट एबल टू दैट इज आइडेंटिफाइड द door where that cage and that is the door where that is not identify the door, not identify the food place, not identify the water place like this. तो उसने जो पुराना था उसने पहचानने से इनकार किया और जो नया था जिसमें वो प्रोटीन ट्रांसफर किया है वो इमीडिएटली वो केज को पहचाना, वो अंदर चला गया और सभी चीजें उसको मेमोराइज हो गई। इसका मतलब कि CRB protein having the memory. Then this protein is transfer, memory also transfer. जैसा हम सीडी हम ट्रांसफर करते हैं या इंफॉर्मेशन सीडी में राइट करते हैं, तो सिमिलर वे ये जो CRB है जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन अगर हम निकालेंगे तो उसको मेमोरी इरेज हो जाएगी और डालेंगे तो उसमें मेमोरी आ जाएगी, लाइक द पेन ड्राइव ऑल्सो। एंड सो दिस इज ऑल्सो क्रिएट सम डेंजरस प्रॉब्लम ऑल्सो। ये जो अगर चीज सही में होने लगी, इंसान में होने लगी, तो क्या हो सकता है कि जो बूढ़ा डॉक्टर है 70-80 साल का, वो 70-80 साल का जो बूढ़ा डॉक्टर है, वो डॉक्टर के ब्रेन में से ये सीआरबी प्रोटीन अगर निकाला और उसके 6 साल के या 7 साल के उसके पोते में डाल दिया, तो क्या हो सकता है कि वो जो 6 साल 7 साल का पोता इट इज रेडी फॉर टू ऑपरेशन और एनी अदर हैंडल द अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। म्हणजे मीन्स वो जो बच्चा है ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार हो सकता है या ऑपरेशन सक्सेसफुली कर सकता है, मगर जो बूढ़ा डॉक्टर जिसमें से प्रोटीन निकाला गया है सीआरबी, वो कुछ भी उसको याद नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उससे और एक प्रॉब्लम उससे और एक बहुत सारे प्रोटीन है उसमें, जैसा सीआरबी प्रोटीन है, MBDNF दैट इज प्रोटीन आल्सो, मैच्योर ब्रेन derived neurotrophic factors produce a chemical reaction involved in the enzyme plasmin and pro-BDNF. Another that is a protein that is called as TPA. Another protein CPEB means that is called as cytoplasmic polyadenylation element binding protein, and other protein that is called as natrin. This natrin also present in neuron synapses, and all the recent research reveals that the protein also strengthen those neural connections or synapses in the adult brain, hippocampus, and area that is involved in the memory and learning. It is very interesting things here. Natrin, which is synthesized in neuron synapses, and this natrin helpful for the strengthening the connections. The more powerful connection, better the long-term memory. This is the related to the short-term memory and long-term memory. Another part, that is the fifth part, that is called as syndrome. Which type of the diseases occurs in the brain? That is in fact here first, that is called as Korsakoff syndrome or Korsakoff amnesia. Korsakoff syndrome, it is caused by it is elicited by due to the prolonged deficiency of vitamin B1 or due to the long-term alcoholism. Due to the long-term alcoholism, there's a deficiency of vitamin B1 is occur, and this is the deficiency of vitamin B1 causes the Korsakoff syndrome. Another type of the Alzheimer's disease, that is over 40% of people who are older than 80 are affected by Alzheimer's disease. It is very that is important here. 40% of people that is older than the 80 years, and
This type of the disease called as neurodegenerative disease. Another that is the researcher says here, if 40% the people older than the 80 they caused or affected that is affected by the Alzheimer disease, and young that is those people having a more above the 40 age or it may be above the 30 age also have the Alzheimer disease. Why? Because brief period of stress can cause a rapid rise in the brain protein linked to the Alzheimer disease. उसका रीजन ये है कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस कैन कॉज रैपिड राइज इन ब्रेन प्रोटीन। स्ट्रेस क्या है? जनरली एक सिंपल हम अगर डेफिनेशन करते हैं, जो समस्या होती है वो हम सॉल्व नहीं करते हैं तो उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं, और वो समस्या ज्यादा दिन तक रहती है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट होता है, और स्ट्रेस के वजह से क्या होता है कि इट इज एबल टू दैट इज क्रिएट द स्ट्रेस हार्मोन, सिंथेसाइज मच मोर हार्मोन्स, एंड दिस hormones is called as homocysteine, and due to that is called as increase in level of homocysteine, it may be caused that is protein synthesized related to the Alzheimer disease, or it may be brain stroke also. And so another that is called a third disease, Parkinson disease. Parkinson disease is nothing but that is those having the Parkinson disease, they do not able to hold his neck, do not able to hold his hand properly, because due to the muscles do not able to work properly. Low level of dopamine in the basal ganglion cause the Parkinson disease. आप लोगों ने देखा होगा, एक आध इंसान होता है जिसकी गर्दन हिलती रहती है, एक आध इंसान का हाथ कंटिन्यूअस हिलते रहता है, ये गर्दन हिलना हिलते रहना, they do not able to control it, and this is called as Parkinson disease. And this is this is called low level of dopamine. What is the dopamine? Dopamine is a neurotransmitter, and this dopamine is very important for other purpose also. The functions of the dopamine see later on in next, that is in nutrition, brain attack and brain stroke. Another disease nowadays common, that is a brain stroke and brain attack. In earlier days, the brain stroke, brain attack, that is caused about 40 or 50 years pupils. Nowadays, it is common about 20 years also. आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक हो रहा है। और ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? इट इज इंटरप्शन ऑफ दैट इज द फ्लो ऑफ ब्लड in the brain cause the brain attack. And when blood fails to reach the area of your brain, brain cells die rapidly and set off a chain reaction that kill other brain cells. It is a dangerous process in the brain. For example, अगर कुछ गिने चुने 10, 5, 20 सेल को अगर ब्लड नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो वो सेल्स एक ऑटो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, एक सेल दूसरे सेल को वो एक्टिवेट करते हैं सुसाइड करने के लिए, और इन दिस वे एक सेल दूसरी के तीसरी, और विद इन द फ्रैक्शन ऑल दैट इज द ब्रेन सेल्स और नर्व सेल्स मे बी दैट इज die rapidly, and death of the human beings occurs. Here the scientist tool that is says the real culprit behind the stroke is homocysteine, not cholesterol. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने से होता है, मगर ये गलत है। सबसे ज्यादा जो होता है होमोसिस्टीन की वजह से होता है। जैसा है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि कुछ स्ट्रेस जो है कोई दुखद घटना घटने के बाद ही बढ़ता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को कुछ दुख नहीं होता है, कुछ दुखद घटना नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है, फिर भी जब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो टीवी लगा लेते हैं, टीवी में सीरियल होते हैं, सीरियल में वो जो सास बहू या अलग अलग जो सीरियल्स होते हैं उसमें वो रोने लगते हैं, वो रोने लगते हैं तो ये भी रोने लगते हैं। तो इसका मतलब वो रोते हैं तो हम भी रोते हैं, इसका मतलब उनका दुख हमारा दुख मानते हैं, और जैसा ही हम इमोशनल होते हैं,
स्ट्रेस में आ जाते हैं तो होमोसिस्टिन हमारे ब्रेन में तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। और बॉडी में अगर होमोसिस्टिन लेवल बढ़ जाता है तो इट इज डेंजरस एंड कॉज द ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन अटैक। आप लोगों ने भी ये कभी सुना होगा कि एक आदि इंसान होता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, दो पैर उसके कट जाते हैं, फिर भी जिंदा रहता है। मगर एक आदि इंसान ऐसा होता है कि थोड़ा सा गिर जाता है और उसको ब्रेन को थोड़ा सा झटका लगता है, फिर भी वो क्या सह नहीं पाता, उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स जिसके ब्रेन में, जिसके बॉडी में होमोसिस्टिन ज्यादा लेवल ज्यादा है, वो स्ट्रोक सहन नहीं सकता, वो कोई भी शॉक सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या ब्रेन अटैक हो सकता है। और अदर दूसरा एक रीजन हो सकता है, जैसा कि अल्कोहलिज्म करने वाले जो लोग होते हैं, जो अल्कोहल पीते हैं, तो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस होता है तो नर्व सेल से वाटर निकल जाता है, पानी निकल जाता है। नर्व सेल से अगर पानी निकल जाता है तो वो ड्राई होने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं तो उसकी जो शॉक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कम होने लगती है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो दारू पीने के, अल्कोहल पीने के बाद जो इंसान झगड़े करता है या झगड़ा करने पे उतारू होता है, उसके मुंह कोई भी नहीं लगता उसको, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता है एक भी जोर से उसको अगर लगती है तो मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज दी सेल्स डू नॉट एबल टू दैट इज absorb दैट इज prevent the shocks and so death is occurs. तो इसलिए होमोसिस्टिन इट इज वेरी डेंजरस इन आवर दैट इज brain, and it is synthesized in small or brief that is period cause the sorry period of stress cause homocysteine synthesis. Stroke is the third leading cause of the death in US. Stroke prevention may be as simple as taking 3 vitamin B. For example, आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारे अंदर होमोसिस्टिन का लेवल ज्यादा है तो विटामिन बी की मात्रा अगर ज्यादा लेते हैं तो होमोसिस्टिन मेटाबोलाइज होता है और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो सकती है, ब्रेन स्ट्रोक से हम बच सकते हैं। तो कौन से विटामिन बी थ्री, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व और ए से लेकर विटामिन बी वन से लेकर बी ट्वेल्व तक जो बी कॉम्प्लेक्स होती है, वो अगर टैबलेट हम लेते रहते हैं बीच बीच में या फिर या वेजिटेबल खाते हैं तो ये हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। Risk the increase the risk for stroke because of homocysteine was similar top of a smoking a pack of cigarette per day. आप लोगों को पता होगा कि एक साइंटिस्ट बताते हैं, कार्सियोनी जो बताते हैं स्ट्रेस कैन टेम्परली इंक्रीज होमोसिस्टिन लेवल। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान एक पॉकेट सिगरेट पीता है एक दिन में और उसके अंदर जितना होमोसिस्टिन लेवल तैयार हुआ है उतना ही घर बैठे बैठे किसी ने टेंशन लिया तो भी होमोसिस्टिन लेवल तैयार होता है। तो उसमें थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस करें तो जो आदमी है या हम जो मेल बोलते हैं, जो मेल मेल लोग है या वो क्या करते हैं, दारू सिगरेट वो पीते हैं और उसके लिए उसका लेवल, उसके बॉडी में होमोसिस्टिन लेवल ज्यादा बढ़ती है। और जो घर में बीवी होती है, जो औरत होती है, वो उसका उनका टेंशन लेने की वजह से होमोसिस्टिन लेवल उनके अंदर बढ़ता है। तो दोनों का इक्वल नुकसान होता है, टेंशन लेने वाले का और जो स्मोकिंग करने वाला, अल्कोहलिज्म करने वाले, दोनों का भी उतना ही नुकसान होता है, एक टेंशन लेने से और दूसरा वेस्ट करने से। तो वो दोनों भी डेंजर है। तो उसके बाद लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज फॉर न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेन। तो हम क्या खाने से हमारा मेमोरी पावर बढ़ सकता है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। द ब्रेन मस्ट बी मैन्युफैक्चर राइट प्रोटीन फैट टू थिंग्स सच एज ग्रो न्यू कनेक्शन एट माइलिन शीथ टू एक्सॉन। एक माइलिन शीथ के बारे में और एक जानकारी देना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहले पार्ट में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा नर्व सेल्स इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकता है और इलेक्ट्रिक पावर इतना ज्यादा क्रिएट कर सकता है कि 40 वैट का बल्ब भी जल सकता है, ऐसा मैंने बताया था। तो इतना पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में तैयार होती है, फिर भी हमें शॉक क्यों नहीं लगता? उसका रीजन है कि ये माइलिन शीथ न्यूरॉन्स नर्व सेल के ऊपर होता है, जिसके वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। बट कभी कभी ये माइलिन शीथ जो है वो ब्रेक हो जाता है
जिसके वजह से जो न्यूरॉन जो है ओपन हो जाते हैं और ऐसे दो न्यूरॉन एक दूसरे से टच हो जाते हैं तो स्पार्किंग हो जाता है और स्पार्किंग होने के बाद वो इंसान गिर जाता है और गिरने के बाद जिसको हम मिर्गी का दौरा बोलते हैं, मिर्गी आना जैसा बोलते हैं। तो ये मिर्गी जो है वो मिर्गी यानी ड्यू टू द दैट इज द माइलिन डैमेज द माइलिन शीथ, डैमेज माइलिन शीथ होने की वजह से वो दो नर्व सेल एक दूसरे से जुड़ते हैं और स्पार्किंग होने से ब्रेन ऑफ हो जाता है। ब्रेन ऑफ होने के बाद उसको रिस्टार्ट होने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। मगर हमें लगता है जैसा मिर्गी आने के बाद खुद जो इंसान गिरता है वो मुंह टेढ़ा होता है, मुंह से सलावा बाहर आने लगता है। उस वक्त हम उसका मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, उसको प्याज सुंघाने की कोशिश करते हैं, अलग मुंह में चम्मच डालने की मुंह खोलने की कोशिश करते हैं, मगर ये बेकार है क्योंकि हमें ऐसा लगता है जो लास्ट में जो हमने प्रयोग किया और इंसान अगर उठ गया तो लगता है कि जो लास्ट चीज है वो उसके लिए फायदेमंद है, मगर ये गलत है क्योंकि ऐसे जो इंसान है जिनको ये जो माइंडसेट डैमेज होने की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जिसको ऐसे लोगों को एक 10 मिनट का समय अगर देते हैं तो तुरंत वो रिकवर हो जाते हैं और वो उठ जाते हैं। मगर प्रॉब्लम इतना ही होता है 10 मिनट में क्या हुआ उनको याद नहीं होता है, उस वक्त उनका ब्रेन ऑफ हो जाता है। तो दैट इज माइलिन शीथ, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर। We obtain the raw material amino acids and fatty acids by digesting the food and दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड N6 N3 और omega 3 it is these fatty acids very important. All fats are not bad, some fats are important for enhance the memory power and that is omega 6 omega 3. Here, low level of the omega-3 fatty acid in diet can cause visual problems, especially by affecting the retina. This is the first side effect. Second, low diet, without diet of that is called as omega-3 fatty acid cause learning problems, motivational problem, motor problem, and serotonin in the frontal cortex. Means here, due to the deficiency of the omega-3, cause visual problem first, second learning problem, third motivational problem. लर्निंग प्रॉब्लम आप लोगों ने देखा होगा किसी को बाइक अगर सीखना है, कोई कार सीखना है तो कुछ लोग 2 दिन में 4 दिन में कार सीखते हैं, कुछ लोगों को महीना महीना लगता है, कुछ लोग बाइक आधे घंटे में सीखते हैं, किसी लोग को 2 घंटे लग सकता है। तो ये क्यों लगता है लर्निंग का डिफरेंस है? इट इज ड्यू टू द लेवल ऑफ दैट इज ओमेगा 3 प्ले इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा omega-6 fatty acid important in proper brain functioning because they affect neurotransmitter release. They also influence the ability of neurons to use glucose. Omega-6 play important role when you are in your body. The glucose level is very high, but there is a deficiency of the omega-3. Your body do not use the glucose due to the deficiency of the omega-3. Omega-3 play important role or increase the ability of our body or nerve cells to use the glucose. अब ये ग्लूकोज नर्व सेल को क्यों चाहिए? मोर द दैट इज द ग्लूकोज लेवल, इट इज create the more ATP, more the ATP, more the energy, it creates the more bioelectric current and more bioelectric current means it is better the memory. आप लोगों ने सुना होगा कभी कि खाली पेट ज्ञान बांटना गलत है, बैठना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम 3-4 घंटे से भूखे हैं, 4 घंटे के बाद जैसा कि सुबह आप लेक्चर सुन रहे हो, सुबह का पहला लेक्चर है तो आपको याद भी हो सकता है, रह भी सकता है, मगर दूसरा तीसरा चौथा खाना नहीं खाया आपने तो ग्लूकोज लेवल अगर डाउन होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज नो ग्लूकोज, देयर इज नो बायोइलेक्ट्रिक करंट, देयर इज नो बायोइलेक्ट्रिक करंट, देयर इज नो न्यू मेमोरी फॉर्मेशन। तो इसलिए खाली पेट ज्ञान बांटना नहीं चाहिए ऐसे बोलते हैं। उसका कारण है कि लो लेवल अगर ग्लूकोज का होता है तो न्यू इलेक्ट्रिक एनर्जी तैयार नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मेमोरी पावर भी नहीं होता है, कुछ याद नहीं रहता। तो इसलिए this omega 6 also helpful to enhance the ability to use the glucose.
diet and neurotransmitter. Neurotransmitter important for that is brain functioning. And so here, this neurotransmitter, it is made from some amino acids. And this amino acids coming from our diet, that is called as protein. And so here, the first neurotransmitter, very important, that is called as dopamine. You also see the dopamine, the deficiency of the dopamine. Parkinson disease also caused. Here, if needed for healthy assertiveness and sexual arousal, proper immune, autonomic nervous system functions. Dopamine important for that is called as healthy assertiveness as well as autonomous nervous system functioning. It is also very important for motivation as well as sense readiness to meet life challenge. अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डोपामाइन का लेवल अगर कम होता है तो मोटिवेशन भी नहीं होता है, देयर इज नो मोटिवेशन, तो वो आलसी हो सकता है और सेंस रेडीनेस टू मीट लाइफ चैलेंजेस. बहुत बार डोपामाइन का लेवल अगर कम होता है तो छोटा सा प्रॉब्लम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है, जो जैसा राय इतना प्रॉब्लम तो हिमालय जैसा लगने लगता है, जिसके बॉडी में डोपामाइन का लेवल कम होता है. जिन लोगों के बॉडी में डोपामाइन का लेवल कम होता है उनको छोटा सा प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगने लगता है. जैसा फॉर एग्जांपल एक आधा 10th का स्टूडेंट 12th का स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में कम मार्क मिलते हैं तो भी वो सुसाइड कर सकता है, और एक दूसरा एक लड़का ऐसा होता है वो सभी सब्जेक्ट में फेल भी होता है तो उन्हें लगता है चलो इतना तो प्रॉब्लम नहीं है, अगली बार सभी की सभी निकालेंगे. तो कहने का मतलब जो सेंस रेडीनेस टू मीट लाइफ चैलेंजेस इट इज ड्यू टू द डोपामाइन लेवल. तो सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो समझ में आता है, जो सुसाइड करने से पहले कम से कम 1 महीना वो खाना कम खाते हैं, 1 महीना वो ठीक से सोते नहीं है. ठीक से ना सोना, ठीक कम खाना खाना यानी डोपामाइन का लेवल कम होना. जैसा जैसा डोपामाइन का लेवल कम होता है वैसा वैसा उसको सुसाइड करने के ख्याल ज्यादा आने लगते हैं, और उसको बचाना चाहते हो तो उसको डोपामाइन का लेवल बढ़ाना है, उसको खाना देना है, उसका अच्छी लाना है, और ऐसा करते हैं तो वो बेटर हो सकता है. अनदर दिस dopamine which is able to synthesize with the help of amino acid phenyl alanine with the help of vitamin C and vitamin E. So beetroot, soybean, almond, egg, meat, grains, these are the food sources for dopamine. almond, बादाम, और ये बादाम और दूसरे इसमें भी है जिसमें दूसरा जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसमें भी बादाम है. इसका मतलब बादाम में 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं जिसकी वजह से 2 डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर तैयार होते हैं और हमारा ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा होता है. इसीलिए हमारे माताजी या फिर हमारी नानी जो भी है वो हमें बचपन से बादाम घिस कर क्यों खिलाते थे, उसका रीजन है कि हमारा ब्रेन का फंक्शन जो अच्छा होना चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए. बिकॉज आलमंड हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स which is one that is the tyrosine and another that is very important that is called as phenylalanine and tyrosine, and both present in almond. Soybean, egg is also rich in that is phenylalanine as well as again rich in that is called as a different type of the amino acid useful for the synthesis of the neurotransmitters. Here norepinephrine. ये नॉरएपिनेफ्रिन बताने के पहले एक चीज बताना मैं भूल गया कि ओमेगा 3 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिस्टोर द मेमोरी एंड रिकॉल द मेमोरी, पर्टिकुलरली रिकॉलिंग एंड रिस्टोरेशन, दैट इज ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि केरला के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, कोकण के लोग, जहां जो लोग किनार पट्टी के साइड में रहते हैं, किनार पट्टी के नजीक रहते हैं, वो लोगों में रिकॉलिंग पावर सबसे अच्छा होता है
और IAS IPS में भी उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है। उनको ज्यादा होशियार कहा जाता है। होशियारी किसके रिलेटेड है? ज्यादा होशियार हम किसको कहते हैं? जिसके पास ज्यादा मेमोरी है उसको हम ज्यादा होशियार नहीं कहते हैं। जिसके पास रिकॉलिंग पावर फास्ट होता है उसको हम ज्यादा होशियार कहते हैं, क्योंकि स्टोर भी होना है, रिकॉल भी करना पड़ता है। तो इंटरव्यू में ज्यादा रिकॉलिंग पावर पे ज्यादा भर दिया जाता है, और इसलिए रिकॉलिंग पावर वो कोकन किनार पट्टी या जो भी जो होते हैं किशोर के बाजू में रहने वाले जितने भी स्टेट्स है या सिटी है, वहां के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों हैं? बिकॉज वो ज्यादा फिश खाते हैं, और फिश में ओमेगा 3 ज्यादा होता है। ओमेगा 3 ज्यादा होने की वजह से उनका रिकॉलिंग पावर ज्यादा हो सकता है। आप लोग केरल के लोगों को देखा होगा, केरल के जो लोग होते हैं वो ऑयल में कोकोनट ऑयल खाते हैं, और फिर भी उनको हार्ट अटैक नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 आल्सो प्रिवेंट द हार्ट अटैक आल्सो। और दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि ओमेगा 3 जिनके बॉडी में ज्यादा लेवल पे होता है उनका लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोग कछुआ जो अलगी खाता है, और उसमें फिश जो होते हैं, बहुत सारे जो फिश है उनका भी लाइफ बहुत ज्यादा है। जैसा कि अपन कछुए का लाइफ 200-250 साल हम कहते हैं। जापान के लोग जो सी फूड खाते हैं जिसमें ओमेगा रिच होता है, तो और फिशेस भी खाते हैं जिसमें से ओमेगा उनको ज्यादा मिलता है, इसलिए उनका भी लाइफ स्पैन ज्यादा है। जैसा कि जापान और बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे सी फूड ज्यादा खाया जाता है, जिसमें ओमेगा रिच फूड खाया जाता है, उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होता है। लाइफ स्पैन बढ़ता है ओमेगा 3 से। वन, दूसरा हार्ट अटैक से बच सकता है, प्रिवेंट द हार्ट अटैक, एंड थर्ड रिकॉलिंग पावर इज एनहांस ड्यू टू द ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नॉन वेजिटेरियन है उनको फिश से ज्यादा, फिश ऑयल और सी कॉड लिवर ऑयल इसमें से उनको ज्यादा ओमेगा मिल सकता है। पर जो वेजिटेरियन है उनके लिए सबसे ज्यादा ओमेगा अगर चाहिए तो अलसी तेल, जवस तेल, लिंसीड ऑयल जो बोलते हैं उसमें सबसे 50% से ज्यादा ओमेगा 3 रहता है। इसलिए बहुत सारे लोग अभी फ्लैक्स ऑयल से या फिर लिंसीड ऑयल से, जवस के तेल से ज्यादा टैबलेट ओमेगा 3 के बनाने लगे हैं। तो वो भी हम लेते हैं। भंडारा की तरफ मैं गया था तो मुझे पता चला उधर के पहले के जो लोग हैं दाल और चावल पे घी के बजाय वो अलसी का तेल डालकर खाते थे। उसका मतलब ये इट इज रिच इन that is omega 3 and helpful for enhance the recalling power also. So next neurotransmitter norepinephrine, it is also called as that is noradrenaline. It is needed for motivation, alertness and concentration, enhance the concentration. Norepinephrine, it is a neurotransmitter helpful for motivation, create the that is the concentration. It is also improve the alertness. It also requires to form the memory and transfer them to long-term memory. Norepinephrine, it is a very important for that is a short memory converted into long-term memory, and it is made from tyrosine. And tyrosine, it is amino acid with the help of vitamin B3, B6, vitamin C, folic acid, iron and copper. It is converted into that is norepinephrine. And so this tyrosine rich food is almond, banana, dairy product, limpkin, pumpkin seed, sesame seed, fish, meat, legume. All these are the that is the sources of tyrosine, means norepinephrine. These are the tyrosine rich of food: almond, banana, and egg. These are the very important. That is for that is different synthesize the different types of neurotransmitter. There is another neurotransmitter called as serotonin. It is also made from tryptophan. It is important for maintain the good mood. बहुत बार लोग बोलते हैं कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं है। तो उसका रीजन क्या होता है कि अगर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है तो हमारा मूड खराब होना स्टार्ट होता है। सेरोटोनिन का लेवल कब कम होता है? जब हमें पेट में खाना कम हो जाता है या खाने के 1-1.5 घंटा लेट हो जाते हो तो सेरोटोनिन का लेवल भी कम होने लगता है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट प्रोमोट कॉन्सेंट्रेशन and it's responsible for normal sleep, regulating memory learning,
and blood pressure, body temperature. Means serotonin it is useful for enhance the concentration responsible for normal sleep. अब ये serotonin जो है it is source is that is called as the carbohydrate rich food. जैसा राइस है, ब्राउन राइस हो या अलग अलग जो भी है, तो जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है ऐसे जो भी फूड है उसमें ट्रिप्टोफैन ज्यादा होता है और उससे सेरोटोनिन तैयार होता है और ज्यादा सेरोटोनिन तैयार होता है तो वो नॉर्मल स्लीप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जब हम डायरेक्ट बोर्ड पे हम पढ़ाते थे तो शायद सभी सामने रहते थे, आप लोग सामने रहते थे और कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है ये भी पता चलता था। मगर अभी ये ड्रॉबैक है कि हम वो पहचान नहीं सकते। मगर सुबह नाश्ते में जिन्होंने पोहा खाकर आए होंगे, नाश्ते में जिसने ज्यादा राइस खाया होगा उनको मेरा लेक्चर भी लोरी जैसा लगने लग सकता है और उनको नींद आने लग सकती है। तो इट इज ड्यू टू द दैट इज कार्बोहाइड्रेट रिच फूड that is promote for synthesis much more serotonin and serotonin reach when it is the level of serotonin more it is promote for normal sleep also and this is that is rich in brown rice, cabbage, cheese, meat, peanut, sesame seed, skim milk, banana, agate like this. Last type of the that is a neurotransmitter is serotonin or sorry acetylcholine. This acetylcholine it is a very important. It is also useful for both storage and recall the memory and muscular coordination. Extra that is the muscular coordination is very important. जो लोग क्रिकेट प्लेयर जो है तो क्रिकेट खेलते हैं उनको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। सुई में धागा अगर किसी को ये करना है तो फिर भी उसको ही मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर हम देखते बॉल की तरफ है और बैट दूसरे तरफ चली जाएगी और फिर वो बैट के ऊपर बॉल नहीं आएगा और इसलिए मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो acetylcholine it is useful for storage the memory, recall the memory and muscular coordination and it is not made from the amino acid. It is made from choline and choline rich in that is the vitamin B family. So you prefer food for acetylcholine that is a vitamin B rich food. For example, egg, yolk, wheat germs, soybean, organ meat, whole meat, wheat product, liver, like this. And so these are the very important food for please enhance the memory power. In short, that is one egg, one that is a glass or cup milk, some that is germinated seeds, one banana, few that is almond. That take daily. That is sufficient to that is the all neurotransmitters and our memory power may be that is enhanced continuously due to the taking this food also. So शॉर्ट में ये मैं यही कहना चाहता था कि एक है कि लेक्चर का एंडिंग में अगर हम सोचते हैं तो पहला है टेंशन फ्री रहना है, स्ट्रेस क्रिएट द दैट होमोसिस्टीन लेवल एंड होमोसिस्टीन लेवल इज एनहांस्ड, तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे डिसीजेस तैयार होते हैं और वो डिसीजेस इट में बी डायबिट, इट में बी acidity piles, or it may be joint pain, it may be thyroid, it may be psoriasis. All these are the diseases caused due to the stress. So और स्ट्रेस किससे होता है? होमोसिस्टीन के लेवल के बढ़ने की वजह से हमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो टेंशन फ्री हमें जीना है एक, और दूसरा हेल्दी फूड खाना इंपॉर्टेंट है, और हेल्दी फूड में बनाना एक, उसमें आलमंड और कुछ अगर फिश वगैरह है या उसमें ओमेगा 3 हम ज्यादा लेते हैं तो ओमेगा 3 लेने की वजह से रिकॉलिंग पावर हमारा अच्छा बन सकता है, अटैक से हम बच सकते हैं, हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ सकता है। तो ओमेगा 3 भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसकी तरफ हम ध्यान देंगे तो जरूर हम मेंटली फिट हो सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं और हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ सकता है। तो ये शॉर्ट में मैं ये समझ देना चाहता था, और कुछ उसके रिलेटेड सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और बाद में भी पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं, और कोई बाद में
कोई किसके इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो यू कैन आस्क टू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, आपने कहा कि सेरोटोनिन से स्लीप यानी नॉर्मल एनहांस स्लीप। करता है सेरोटोनिन, और राइट राइट राइट। हाँ कार्बोहाइड्रेट, हाँ यस, और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं सेरोटोनिन ज्यादा स्टिमुलेट यानी सीक्रेट हाँ, होता है। होता है। राइट तो राइट। सर तो ट्रिप्टोफैन सर एक अमीनो एसिड है। हाँ हाउ कम अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड? हाँ, नाही बरोबर प्रश्न आहे तुमचा। तो ट्रिप्टोफैन जो है, तो जैसा कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं, राइस है उसमें भी लेवल का एक प्रोटीन होता है, और उसमें भी जो है ये अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन जो है उसमें रिच हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड जो फूड है उसमें ज्यादा ट्रिप्टोफैन होता है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच कैसा होता है कि उसके प्योरली वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। जैसा राइस है उसमें भी प्रोटीन होता है, व्हीट है उसमें भी प्रोटीन है, एक्चुअली रिच इन कार्बोहाइड्रेट है मगर उसमें भी प्रोटीन है। ओके मतलब वो उसका जो प्रोटीन है उसमें के जो अमीनो एसिड ज्यादा ज्यादा कौन से ट्रिप्टोफैन है या ओके ओके टायरोसिन हुआ है, तो ऐसा इसके वजह से वो नॉर्मल स्लीप के लिए प्रोमोट करता है। ओके ओके ओके, हाँ थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मुझे एक ऐसा क्वेश्चन था हाँ कि सर मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। हाँ एमएससी पार्ट 1 में मैंने सुना था कि जो एसिटिलीन कोलिन है। हाँ हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ बोलो। सर, एसिटिलीन कोलिन को स्टिमुलेट करने के लिए जैसे सडन कुछ ड्रग्स या फिर कोई किसी चीज को हम लेते हैं, हाँ जैसे पढ़ाई करते समय भी कोई कोई बच्चे जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के मैंने सुना था कि वो हाँ किसी टाइप की टैबलेट वेबलेट लेते हैं तो हाँ सडन जो एक्सेलरेशन होता है सर एसिटिलीन कोलिन का, हाँ 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 वो अगर हम आर्टिफिशियली इंक्रीज करते हैं तो उसका हाँ। भी हमारे मेमोरी के ऊपर कोई असर होता है क्या? नहीं, कैसा है कि जो भी हम आर्टिफिशियल तैयार करते हैं उससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। नॉर्मल तरह के हम जो फूड होते हैं, जैसे विटामिन बी है, विटामिन बी रिच अगर फूड हम खाते हैं, अभी कुछ लोग कैसा है डायरेक्ट विटामिन के टैबलेट लेते हैं, हाँ हाँ हाँ। और कुछ लोग क्या करते हैं कि फूड के जरिए विटामिन वो लेते हैं प्रो विटामिन के फॉर्मेट में। जैसा कि विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है। वो अगर हम टैबलेट के फॉर्मेट में लेते हैं और ज्यादा वो होते हैं तो हमें साइड इफेक्ट होने लगते हैं। तो वो जरूरी है कि वो फूड के जरिए ले ले। जैसा सिमिलर वे जैसा विटामिन बी और विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, अगर हम टैबलेट भी लेते हैं तो वो एक्सेस होता है तो यूरिन के थ्रू चला जाता है। वैसा सिमिलर एसिटोकोलिन जो है वो प्रोसेस अगर हम आर्टिफिशियली बढ़ा रहे हैं तो टेम्परली बढ़ा रहे हैं, और टेम्परली एकदम से बढ़ता है तो कोई ना कोई पार्ट डैमेज कर लेता है। तो वैसा नहीं करना चाहिए। एसिटोकोलिन विटामिन बी से बनता है, तो वो विटामिन का लेवल अगर अच्छा रखते हैं तो हमारा मेमोरी पावर भी अच्छा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम। हेलो सर। ओके सर, थैंक हाँ यू। हेलो। हेलो सर, हम अपना मेमोरी पावर योगा या मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं क्या सर? कैसा है कि मेमोरी योगा और मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारा माइंड कूल होता है, कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। कोई चीज के ऊपर जब पढ़ाई करना है तो हम कूल माइंड से हम पढ़ सकते हैं, यानी एनहांस द कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन से पढ़ी हुई चीजें मेमोरी में भी बदलाव कर सकता है, मेमोरी भी स्ट्रांग बन सकती है। तो डायरेक्टली रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है क्योंकि सर, ये जो कॉन्सेंट्रेशन। हाँ इपिलेप्सी हाँ, इपिलेप्सी, हाँ सही है। सर, इपिलेप्सी डिसीज का परमानेंट ट्रीटमेंट है क्या सर? जनरली मैंने पढ़ा है, और मैंने कुछ लोगों को इपिलेप्सी ट्रीटमेंट भी, हाँ मैंने कुछ लोगों को दिया भी था, और पढ़ा भी है मैंने कि जैसा कि एक हमारे पास एक इंसान आता था, हफ्ते में उसको एक बार अटैक आता था इपिलेप्सी का, एक बार दो बार। मैंने उनको सिंपली एलोवेरा जूस दिया था, अच्छा। और फिर मैंने 2-3 महीने के बाद एलोवेरा। आ गया कि हाँ एलोवेरा जूस जो होता है वो हमारे फॉर्मेट में, तो मैंने वो फ्रेश अच्छा। वाला दिया था उसको। तो फिर एक 2-3 महीने के बाद वो आया था और बोला कि सर जो हफ्ते में आता था वो मेरा बहुत कम हो गया। और एक दूसरे एक मैडम थी, उनको साल में 2-3 बार तो आता ही था इपिलेप्सी का अटैक, तो उनको भी मैंने एलोवेरा दिया था। तो लगभग 1 साल भी उनको बाद में मुझे मिलने के बाद बताया कि 1 साल तक मुझे अटैक नहीं आया।
तो इपिलेप्सी का जो है तो एलोवेरा जूस जो है, एलोवेरा में से जो भी कंटेंट होंगे वो माइलिन सीड बनाने के लिए प्रोमोट करते हैं। और आपने अभी दूसरा एक सुना होगा, न्यूरो और एक डिसीज होता है न्यूरोपैथी बोल के एक डिसीज होता है। न्यूरोपैथी में माइलिन सीड डैमेज होता है पैर में, हाथ में, तो उसका पैर गर्म होने लगता है और दर्द करने लगता है, जलन होने लगती है, तो वो भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज, सॉरी माइलिन सीड डिजेनरेटिव डिसीज है। तो उनको भी मैंने एलोवेरा जूस दिया था, तो बहुत हद तक उनको भी फायदा हुआ था। तो शायद रशिया का एक फार्मर के बारे में एक मुझे पेपर मिला था, तो उन्होंने एक दवाई की थी जिसकी वजह से माइलिन सीड सिंथेसिस हो, मगर ये एलोवेरा भी अपना यह काम करता है। थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। सर संजय मेश्राम बोलतोय। बोला ना। सर काही लोकांना एक सर्टन एज झालं की स्मृतिरास होतो, विसरायला लागतं आणि स्पेशली जसं आई लोक असतात, लेडीज काही असतात, नेमके डबे कुठे ठेवले आहेत, वारंवार कसं कन्फ्युज होतात, विसरतात, तर अशा वेळेस आपल्याला काय करता येईल सर? जनरली कसं आहे की हे विसरभोळेपणा जो आहे न्यूरो डिजेनरेटिव्ह डिसीज म्हणतो आपण, 40-80 वर्षाच्या नंतर तो खरं तर व्हायला पाहिजे, पण तो 60 वर्षानंतरही होतो ड्यू टू द स्ट्रेस, टेन्शनमुळे हा वाढतो। काही लोकांना 40 वर्षानंतर पण हा होऊ शकतो। हो. तर न्यूरो डिजेनरेटिव्ह अगर आपल्याला थांबवायचा असेल तर आपण त्यांना एक की मेंटली त्यांना ऍक्टिव्ह ठेवावं लागतं, म्हणजे जे मेंटली योगा प्राणायाम जो आहे हे गोष्टी त्यांना करायला लावलं तर स्ट्रेस कमी होईल, तर तो मात्र त्यांचा जो न्यूरो डिजेनरेशन तो हळूहळू कमी होऊन जाईल। तर ती स्पीड कमी होऊ शकते आणि जो हेल्दी फूड आहे तो दिला तर आणखी फायदा होऊ शकतो। आता तुम्ही पाहिलं असाल पॉलिटिशियन लोक जे 70-80 वर्षाचे आहेत आणि तरी ते बेटर मध्ये त्यांची आहे। म्हणजे ते प्रॅक्टिसवर डिपेंड राहतं, किती हेल्दी आपण माइंड ठेवतो त्याच्यावर ते डिपेंड आहे। ओके सर, ओके, थँक्यू सर। ओके, थँक्यू। हॅलो सर, हॅलो, बोला। हॅलो, बोला ना सर, बोला। want to ask one question, sir. बोला ना। सर जो हिप्पोकॅम्पस आहे, तर हिप्पोकॅम्पस मधले सेल्स मेमोरीसाठी यानी मेमोरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो हिप्पोकैम्पस के सेल्स में जो फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फेट जो ग्रुप अटैच, उसकी वजह से मेमोरी इंक्रीज होती है सर्टन प्रोटीन्स में, है ना, CREB। तो ये जो मार्केट में जो मेंटल टॉनिक्स जो बिकते हैं, यानी ब्रेन पावर बढ़ाने वाले, तो उनमें ये फॉस्फोरिलेशन करने वाला कोई एजेंट होता होगा कि ये जो प्रोटीन को यानी फॉस्फेट ग्रुप ऍड करतो? नाही। आता हे जे मार्केटमधले जे आहेत, मार्केटमधले जे प्रोडक्ट असतात ते एक्स्ट्रॅक्ट असतो, प्लांटचा एक्स्ट्रॅक्ट असतो, असा पर्टिक्युलर कंपाऊंड नसतो त्याच्यामध्ये। प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट असल्यामुळे त्याचे मॅक्सिमम सगळेच कंपाऊंड त्याच्यात असतात। ओके। फक्त कसं असायला पाहिजे त्याच्यामध्ये, हे फॉस्फोरिलेशन होण्यासाठी आपल्याला जे हेल्दी ठेवण्यासाठी जे महत्वाचे आहेत, डायजेशन हेल्थ चांगलं ठेवलं पाहिजे, त्याच्यानंतर डायजेशन चांगलं झालं तर आपले जे आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कॅल्शियमचे कितीही जर टॅबलेट खाल्ले आणि व्हिटॅमिन डी ची डिफिशियन्सी असते तर तुमच्या बॉडीमध्ये थोडे कॅल्शियम अब्सॉर्ब होणार नाहीये। तर व्हिटॅमिन्स जसे महत्वाचे आहेत की ते अब्सॉर्ब करण्यासाठी, तर ते आपल्या बॉडीमध्ये अब्सॉर्ब होण्यासाठी काही वेळेस काय हेल्दी ठेवण्यासाठी हे काम करतात। आणि दुसरी गोष्ट सायकोलॉजिकल जास्त आहे त्याच्यामध्ये, की आपण आता ब्रेन टॉनिक घेत आहोत, आपली मेमरी पॉवर वाढत आहे। ओके। तर तो एक सायकोलॉजिकल इफेक्ट जास्त आहे त्याच्यामध्ये। ओके सर, व्हेरी गुड सर, इंटरेस्टिंग। ओके, थँक्यू। हेलो, बोला मॅडम। हेलो, गुड मॉर्निंग, बोला। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि एज यू सजेस्ट दैट स्ट्रेस लेवल जैसे ही इंक्रीज हो जाती है तो हिस्टोसिस्टीन का, होमोसिस्टीन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है बॉडी के अंदर। राइट। डिस्टर्बेंस हो गया तो बॉडी के अंदर डिसीज भी क्रिएट हो जाती है। सो इफ इट लाइक थायराइडिज्म, सो अगर जिसको हार्मोनल लेवल डिस्टर्बेंस होने के बाद में, और डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि अल्टॉक्सिन जो टैबलेट है वो लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, वो लेवल नॉर्मल तभी रहेगी, अदरवाइज। सो एज यू सजेस्ट
डाइट में अगर चेंजेस कर लेते हैं तो क्या मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, वो लेवल जो है वो नॉर्मल आ सकती है और होमोसिस्टिन की लेवल भी कम हो सकती है उससे? हाँ, ये देखो उसमें कैसा है कि साइकोसोमैटिक डिसीज बोलते हैं, है ना? जो थायराइड है, डायबिटीज है, प्रेसिस है, जॉइंट पेन है, पाइल्स, ये जो डिसीजेस है उसको हम साइकोसोमैटिक डिसीज बोलते हैं। ओके। तो साइकोसोमैटिक डिसीज जो है होमोसिस्टिन की लेवल बढ़ने के वजह से तो ग्लैंड्स, हमारे जितने भी ग्लैंड्स है बॉडी में, वो ग्लैंड के ऊपर उसका फंक्शन डाउन करता है। फॉर एग्जांपल होमोसिस्टिन फंक्शन क्या है मैं बताता हूँ। जैसा हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद हार्ट बीट बढ़ देते हैं या घबराते हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ गए और ज्यादा देर तक रहे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, उसको नॉर्मलाइज करना चाहती है। नॉर्मलाइज करने के लिए होमोसिस्टिन को सिक्रेट करती है। होमोसिस्टिन की वजह से क्या होता है कि उसका जो बड़ा हुआ जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता है। मगर दिन भर हम टेंशन लेते रहेंगे तो होमोसिस्टिन लेवल बहुत ज्यादा तैयार होंगे। हमारा लिवर जितना होमोसिस्टिन डाइजेस्ट कर पाता है, डिस्ट्रॉय कर पाता है, उससे ज्यादा सीक्रेट होने की वजह से वो लिवर के ऊपर भी अटैक करता है, लिवर का फंक्शन भी डाउन करता है, तो एसिडिटी पाइल्स होता है, डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो सिमिलर वे जितने भी ऑर्गन्स हमारे जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका फंक्शन डाउन करता है। अगर ये फंक्शन डाउन का जो है फर्स्ट लेवल पे है तो हम अगर हेल्दी एक्सरसाइज और डाइट लेते हैं तो टैबलेट की जरूरत नहीं होगी। मगर वो लेवल कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है। डैमेज अगर जैसा बीटा सेल है, जैसा लिवर में होते हैं डायबिटीज के, वो मर जाते हैं तो फिर रिक्रिएट तो नहीं होंगे, पूरा की पूरा मर जाते हैं। हाँ, थोड़े बहुत मर जाते हैं तो फिर जो भी बचे हैं वो रिक्रिएट हो सकते हैं। वैसा थायराइड के रिलेटेड भी है, वो हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, और फिर वो जो सिक्रीशन लेवल जो कम हो रहा है तो उसका फंक्शन कम हुआ है। तो अगर वो सेल जिंदा है, खाली एक्टिविटी कम हो गई तो स्टिमुलेट हो सकता है। अगर जिंदा नहीं है तो फिर मरते दम तक दवाई लेना पड़ता है। तो लेवल देखना पड़ता है कि सेल इज इनएक्टिव ओनली और इट में बी द लेवल फंक्शनिंग लेवल और इट में बी परमानेंटली डैमेज। जो अभी मेरे पास एक दो पेशेंट आए थे, वो जस्ट स्टार्टिंग में आए थे, थोड़ा सा बड़ा था, जैसा 5 लेवल तक चाहिए, तो उनका 7 हो गया था। तो मैंने उनको नॉर्मली हेल्दी रहने के लिए और थोड़ा सा एक दवाई दी थी। तो 3 बार उन्होंने 3 डोज लिए थे, तो अभी तक उनको 7 के ऊपर अभी तक नहीं गया। तो अभी 4-5 साल हो गए, 4-5 साल से चेक करते रहते हैं, 6-7 के बीच में है और कोई ज्यादा साइड इफेक्ट भी उनके बॉडी में नहीं है। मगर वही अगर डैमेज पूरा की सेल डैमेज होने के बाद आते हैं तो नहीं हो सकता। तो उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारे जो ग्लैंड्स के सेल्स कितना डैमेज हुए हैं। अगर इनएक्टिव है तो एक्टिवेट करने के लिए दवाई है मार्केट में, उससे एक्टिवेट होंगे और फिर नॉर्मल हो सकते हैं बहुत बार। Hello. Hello. हेलो। Sir, good morning. Thanks. It was very interesting session actually. थोड़ा सा मेरा skip हुआ है. Proteins involved in memory. आपने उसमें CREB प्रोटीन के बारे में बताया, और भी कुछ सारे प्रोटीन्स थे. Can you tell me sir? थोड़ा सा वो बता सकते हैं दूसरे प्रोटीन्स? तो स्लाइड में मैंने इसीलिए नहीं बताया कि स्लाइड में बहुत सारे प्रोटीन उसमें थे, जैसा कि स्नैसिन प्रोटीन है ना, बहुत सारे प्रोटीन जो थे 4-5 प्रोटीन, तो वो किसके रिलेटेड है कि वो प्रोटीन की रिकॉलिंग पावर या सॉरी कन्वर्शन ऑफ मेमोरी वन फॉर्म इनटू अदर फॉर्म, शॉर्ट टर्म इनटू लॉन्ग टर्म, तो हेल्प करने वाले प्रोटीन थे। और जिस प्रोटीन के फॉर्मेट में स्टोर होता है वो सीआरबी प्रोटीन होता है। तो इसलिए मैंने सीआरबी प्रोटीन पे ज्यादा मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था। अगर आपने मेरी स्लाइड देखेंगे तो उस स्लाइड में बहुत सारे प्रोटीन के मैंने नाम दिया था। ये न्यूट्रिन क्या करता है, कनेक्शन पावरफुल बनाता है। जैसा कनेक्शन टूटते हैं तो मेमोरी लॉस हो जाती है, और कनेक्शन ज्यादा दिन तक वो वैसे के वैसे रहते हैं तो मेमोरी हमारी ज्यादा दिन तक रहती है। तो जो कनेक्शन बेटर रखने के लिए नेट्रिन नाम का जो प्रोटीन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने बताया था सीपीईबी, कौन सा, साइटोप्लाज्मिक पॉलीएडेनिलेशन एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन, सीपीईबी प्रोटीन, ये भी मैंने बताया था। इट इज एक्टिवेट द डॉर्मेंट एमआरएनए, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमआरएनए इंपॉर्टेंट है। मींस दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सबको पता है। पहला
ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। आरएनए सिंथेसिस के लिए हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस का जो अगला पार्ट अमीनो एसिड को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बढ़ाने के लिए सीपीईबी का इंपॉर्टेंस है। फिर दूसरा एक जो है, हाँ, उसका इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक है टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, टीपीए, ये भी एक प्रोटीन है। टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, जो हमारा जो टिश्यू है उसमें का प्लाज्मा जो है वो एक्टिवेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा बढ़े। दूसरा प्रोटीन मैंने बताया था, ये MBDNF है ना, ये जो है ये प्रोटीन which stand for mature brain derived neurotrophic factors, it produced by chemical reaction involving the enzymes plasmin, है ना। ये प्लाज्मिन थ्रू ये बनता है, ये भी हमें लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रोटीन शॉर्ट टर्म कन्वर्ट इनटू लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो रियल हमारा मेमोरी स्टोर होता है, मटेरियल है, जो प्रोटीन है वो सीआरईबी प्रोटीन है, क्योंकि सीआरईबी प्रोटीन निकालते हैं तो मेमोरी इरेज होती है, वो डालते हैं तो मेमोरी ऐड होती है। तो इसका मतलब सीआरईबी प्रोटीन के फॉर्मेट में मेमोरी स्टोर होती है, और बाकी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को राइट जो है मेमोरी राइट और रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक्स सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। और कुछ? हेलो, हाँ सर, हेलो? एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। बोलो। सर छान झालं लेक्चर। एक छोटासा प्रश्न आहे, आता आशिष सरांनी विचारलं तुम्हाला मेंटल टॉनिक बद्दल। माझा तसाच प्रश्न आहे की ब्रेन ट्रेन आपण म्हणतो, ब्रेन ट्रेनिंग किंवा ब्रेन ब्रेन जे आहे, हा कन्सेप्ट आहे का खरा? म्हणजे ऍक्च्युली आपण कोणत्या वयामध्ये शंखपुष्पी किंवा च्यवनप्राश असं देतो? म्हणजे आपण आता तुम्ही सुंदर लेक्चर झालं, त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी सांगितल्या, आपण शिकतोच तशा सगळ्या, पण ब्रेन ट्रेनिंग जे आहे ते खरंच म्हणजे या लाईफस्टाईल मध्ये शक्य होत नाही। पण निदान ग्रोथ जी आहे आपली 15 वर्ष 14 वर्षापर्यंत, त्या वयामध्ये असे काही कंटेंट आपण जे अलसी आहे किंवा घरचेच कंटेंट आपण दिले, कन्सेप्ट थोडा क्लिअर होईल म्हणजे तसा। बिलकुल 100%। की माझं म्हणणं आहे किंवा तो आपण ब्रेन टॉनिक दुसरे बाहेरचे घेण्यापेक्षा त्याच्यात प्रिझर्वेटिव्ह जास्त असतात, त्याच्यापेक्षा मुलांना कधीही आपण त्याला दररोज एक बनाना त्याच्या पोटात गेला पाहिजे याची काळजी घ्यायला पाहिजे, एक 5 ते 10 बदाम त्याच्या पोटात गेले पाहिजे त्याची काळजी घेतली पाहिजे, एक ग्लास दूध किंवा एक कप दूध जरी पिला तरी चालेल, त्याच्यानंतर एक अंड त्याच्या पोटात गेलं पाहिजे, एक अंड आणि पुन्हा एक छोटीशी वाटी उसळ है ना। हे जे नॉर्मल जो डाएट आहे, एक वाटी उसळ, एक कप दूध, एक पुन्हा एक एग, एक बनाना, 5 ते 10 बदाम, खजूर, हे जे नॉर्मल जे आहेत हे जर आपण जर दिलं तर तुम्हाला ब्रेन टॉनिकची बिलकुल गरज भासणार नाहीये। हे झालं हेल्दी मेंटेनन्स साठी। आणि त्याच्यानंतरही जर लक्षात असतील तर मग काही मेमरी टेक्निक्स असतात, बरोबर आहे, हाऊ टू इम्प्रूव्ह द कॉन्सन्ट्रेशन, मग आपण ते लक्षात कसं ठेवायचं, लक्षात ठेवण्याच्या काही ट्रिक्स असतात, वाचते वेळेस कसं वाचलं तर जास्त लक्षात राहतं। आता एक तुमच्या याच्यावर स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल, मेमरी टेक्निक्स म्हणून टाकलेलं आहे, 10% व्हॉट वी रीड, आपण वाचलेलं 10% लक्षात राहतं, आपण ऐकलेलं 20% लक्षात राहतं, आणि जे आपण पाहतो ते 30% लक्षात राहतं, आणि जे आपण पाहतो आणि ऐकतो दोन्ही करतो ते 50% लक्षात राहतं। आणि आता जे आपण ऐकल्यानंतर पाहिल्यानंतर जे डिस्कस करत आहोत आपण आता सर्वजण, त्याच्यामुळं 70% ते लेक्चर आपल्या लक्षात राहतं किंवा ती इन्फॉर्मेशन आपल्या लक्षात राहतं। आणि हे जे आता लक्षात जे आपण डिस्कस केलेलं आहे त्याचा एक्सपिरियन्स जर आपण केला तर ते 80% लक्षात राहतं, आणि जे आज तुम्हाला शिकवलेलं आहे हे जर तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्याला जर शिकवलं तर 95% तुम्हाला ते लक्षात राहील, बरोबर, टीच अदर। तर हे कसे काही टेक्निक्स असतात त्याच्यानंतर, म्हणजे हेल्दी राहणं वेगळं आहे ना, हेल्दी राहणं वेगळं, आणि त्याच्यानंतर काही ट्रिक्स असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला लक्षात राहतं। तर जनरली आपण जो पाहतो, इमॅजिनेशन करतो, पाहिलेल्या गोष्टी लवकर लक्षात राहतात ऐकण्यापेक्षा। ओके, ठीक आहे सर, थँक्यू। ओके, थँक्यू। हॅलो सर, बोला सर। जनरली असं म्हटलं जाते की इंटेलिजन्स नेवर वर्क इन इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा क्यों कहा जाता है सर? खूप छान हा प्रश्न माझा आता समजून सांगायचा राहिला होता सुरुवातीला।
कारण का तुम्ही माझ्यासमोर कोणीच नव्हती आणि म्हणून मी आपल्या स्पीडनं चाललो होतो त्याच्यामध्ये. तर हा जो आहे तुमचा जो प्रश्न की काय म्हणलं होतं? इंटेलिजन्स नेवर वर्क इन इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. हा, तो अमागदलच्या वेळेसच मला ते सांगायला पाहिजे होतं. अमागदलचं इमोशन जे क्रिएट करतं काय त्यावेळेस मला क्लिअर करायला पाहिजे होतं. त्याच्यामध्ये असं होतं की हिप्पोकॅम्पसचं जो फंक्शन आहे, हिप्पोकॅम्पस जे फंक्शन आहे नॉर्मल स्टेटमध्ये चांगलं काम करतं. सर फुल माइंड असतं. सर हिंदीमध्ये सांगाल कारण की काही बाहेरचे पण हाँ बराबर. हाँ, जो हिप्पोकैम्पस का जो फंक्शन है नॉर्मल स्टेट में जो है, जो हम कूल रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, मगर हम टेंशन में रहते हैं या इमोशन ज्यादा होते हैं, दुखी होते हैं, उस वक्त वो जो हिप्पोकैम्पस के ऊपर स्ट्रेस आता है और वो रिकॉलिंग करना कम कर देता है. दे स्टॉप द रिकॉलिंग. और रिकॉलिंग स्टॉप तो हमें जो 5 मिनट पहले जो हमें चीज याद थी वो हम भूल जाते हैं. जैसे कि हम 10 बार पढ़ाई करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करने के बाद इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं. इंटरव्यू के लिए जाते हैं और जैसे ही 8-10 लोग सामने बैठे देखते हैं तो हम डर जाते हैं. जैसा ही घबरा जाते हैं तो हिप्पोकैम्पस के ऊपर प्रेशर आता है. जैसा ही प्रेशर आता है जो चीज नॉर्मल थी वो चीज भी उस वक्त याद नहीं थी, और जैसे ही वहां हॉल से बाहर आते हैं तो तुरंत याद आने लगता है. इसका मतलब ऐसा होता है कि हमारा हिप्पोकैम्पस का वर्किंग जो है नॉर्मल स्टेट में कूल माइंड में होता है तो बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है. रिकॉलिंग पावर उसका बढ़ जाता है. मगर वही स्ट्रेस में रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, घबरा जाते हैं या हमें गुस्सा आता है, उस वक्त उसका फंक्शन क्लोज होता है या स्टॉप होता है और हमें पहले की मेमोरी याद नहीं होती. इसलिए बोलते हैं कि गुस्से में जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमेशा गलत होता है, कभी भी करेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो डिसीजन लेते वक्त तो पहले का अनुभव हमें साथ होना चाहिए, पहले की मेमोरी हमें साथ होनी चाहिए थी. तो वो नहीं होने की वजह से हम टेम्पररी डिसीजन लेते और उसकी वजह से हमारा नुकसान हो जाता है. तो इसलिए इमोशन स्टेट में कौन सा इमोशन जो स्ट्रेस के रिलेटेड हो, टेंशन के रिलेटेड हो, दुख के रिलेटेड हो या गुस्से के रिलेटेड हो, तो मगर मैंने जो बताया था बेटर द इमोशन ग्रेटर द मेमोरी, वो किसके रिलेटेड है? जैसा कुछ हमारे खास कुछ चीजें अच्छी लगे उसके रिलेटेड, इमोशन के रिलेटेड कुछ चीजें घट रही है घटना, तो हमें तुरंत वो याद रहती है. जैसा कि हमारे रिलेटेड हो या ना हो, अगर रास्ते में जा रहे हैं और एक एक्सीडेंट हुआ है और हमारे रिलेशन में हुआ है, ऐसा लगता है हम हो जाते हैं, तो वो बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं कि आज एक्सीडेंट हुआ है, मैंने देखा है और याद करना है, लोगों को बताना है. ऐसा करने की जरूरत नहीं है. एक बार देखते हैं तो हम कभी जीवन भर भूलते नहीं. हमारे साथ जो हादसे होते हैं इमोशन के रिलेटेड, इमोशनल हादसे होते हैं, वो हम जिंदगी भर बोल नहीं सकते. हम भूलना चाहते हैं फिर भी भूल नहीं सकते. और जैसा कि जो पढ़ाई के रिलेटेड है, जो हम याद रखना चाहते हैं वो नहीं याद रख सकते हैं. तो आपका सवाल वो सही था कि इमोशनल जो स्टेट होता है कौन सा, दुख के रिलेटेड, स्ट्रेस के रिलेटेड होता है, तब हमारा हिप्पोकैम्पस काम करना बंद कर देता है, जिसके वजह से हमारी मेमोरी जो रहती है ब्रेन में, इंफॉर्मेशन रहता है मगर रिकॉल नहीं होता और इसलिए हमें याद नहीं आता और हम भूल जाते हैं, टेम्पररीली भूल जाते हैं, परमानेंट नहीं भूलते. जैसा कि हम बाहर आते हैं तो हमें रिकॉलिंग होने लगता है. और कुछ? सर माझा एक प्रश्न आहे. हाँ, इज देयर एनी रोल ऑफ अमॅग्डाला? हेलो. हा सर माझा एक प्रश्न आहे हाँ, की आपण काही जण कुणी सस्तात ते डाएट बॅलन्स वगैरे आपल्या याच्यामध्ये घेत नाही, हाँ, ठीक आहे, तरी पण त्यांची मेमरी चांगली असते, कोणते टॉनिक घेत नाही किंवा काही नाही घेत, अशा याच्यामध्ये मेमरी वाढवण्यासाठी त्यांचे कोणते फॅक्टर रिस्पॉन्सिबल असतात हाँ, की ज्यांच्यामध्ये कसं बॅलन्स डाएट नसतं? हा, आता कसं आहे की जो काही थोडा बहुत जे आपण आहार घेतो आहे आणि ब्रेनचं रिलेटेड जर काम ते जास्त करत असतील, एखादा बहुत एखादा इंसान होता बहुत मोटिवेटेड होता है, उन्हें वो काम करना होता है या पढ़ाई करना होता है या याद रखना है या मेरिट में आना है, ऐसा उन्हें लगता है, तो उस वक्त वो क्या करता है कि मैक्सिमम जो हमारा जो भी नॉर्मल जो डाइट होता है उसमें से जो चीजें होती है उसमें भी आमाने से बहुत सारे होते हैं, वो यूटिलाइज करके वो ब्रेन का पावर बढ़ाने की कोशिश करता है. ब्रेन का डेवलपमेंट ज्यादा, जैसा कि हम खाना खाते हैं और एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, कसरत ज्यादा करेंगे तो मसल ज्यादा बनेंगे,
ब्रेन का ज्यादा यूज करेंगे तो ब्रेन पावर ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। तो जिस चीज का हम ज्यादा यूज करते हैं उसमें ज्यादा यूटिलाइज होता है उसका, हमारा फूड का कंटेंट ज्यादा यूटिलाइज होता है, जो भी हम नॉर्मली खाते हैं वैसा। हेलो थैंक यू सर। हेलो हेलो सर मैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन ऐड करूँ क्या? जो अभी सर ने पूछे कि जो लोग कुछ अलग से टॉनिक भी नहीं लेते या फिर अलग से डाइट नहीं लेते फिर भी मेमोरी, एक्चुअली क्या होता है कि एक तो थोड़ा सा जेनेटिक ये भी रहता है, ऊपर से इफ दे आर हैप्पी so the good hormones they get released like dopamine serotonin जो भी आपने बताया सर रिलीज होता रहता है उनमें, so that is उनको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं होती है, so these happiness hormones तो work actually। हाँ नहीं सही है, नहीं सही है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैंने भी ऑब्जर्व किया है, जो नेट से ज्यादा पास होते हैं लड़के, तो जिसका ज्यादा कूल माइंड, जो स्टेबल माइंड ज्यादा जिनका ज्यादा है, वो लोग ज्यादा जल्दी पास होते हैं। ये भी मुझे है। और दूसरा बात ये देखा है आपने कि अभी जो डिस्कशन हम हो रहा था कि हमारा जो हिप्पोकैम्पस काम नहीं करता है इमोशनल स्टेट में, तो जो भी जितने भी हम फिल्में देखे हैं उसमें एक विलन और एक हीरो होता है, और पूरा फिल्म में ये दोनों ही ऐसे होते हैं, वो कूल माइंडेड होते हैं, हीरो भी और जो विलन भी। हमें लगता है कि अभी कितने डेंजर सिचुएशन है, तो उस वक्त हीरो गाना के हमें समय दिखाई देता है, या विलन हंसते हुए दिखाई देता है डेंजर सिचुएशन में। इसका मतलब जो कूल माइंड में होने की वजह से ही वो रास्ता निकाल पाते हैं, अगले 5 मिनट में बाजी पलट देते हैं। तो हीरो हो या विलन हो, वो दो कैरेक्टर ऐसे बताते हैं वो कूल माइंडेड है। तो सिमिलर वे आपने जो बताया है कि कूल माइंड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो मेमोरी रिकॉलिंग के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए, दोनों के लिए भी। Thank you so हाँ, much, sir. ओके थैंक यू। Sir, on behalf of all the participants, I extend my hearty thanks to you for accepting our Okay. invitation and for a wonderful session. सर डे Okay, टू डे thank you, लाईफ ma'am. मध्ये पण हे खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि खूप इन्फॉर्मेटिव्ह Oh. सेशन होतं सर. थँक्यू सो मच. ओके ओके थैंक यू। ओके थँक्यू. Friends, I am ending the meeting. We will meet after 10 to 15 minutes for next session. Okay,